ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनाम्। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। આ પ્રવચન સાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે। ભગવત कुंदाचार्य देवे मांगलिक करके प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा में आचार्य भगवान ने कहा, विशुद्ध दर्शन ज्ञान जिसमें मुख्य है, ऐसा साम्य कि जिसका फल निर्वाण की प्राप्ति है, उसको मैं कहूंगा। विशुद्ध ज्ञान शब्द में से आचार्य भगवान ने प्रथम अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को खोला है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में पेटा प्रथम अधिकार सदुपयोग का फल बताया, क्षायिक ज्ञान और क्षायिक सुख। अब शुभोपयोग का फल, शुभ परिणाम का फल 11वीं गाथा में आचार्य भगवान ने बताया कि शुभ उपयोग का फल स्वर्ग है, यानी इंद्रिय सुख है। तो ये प्रथम अधिकार का पेटा चौथा अधिकार चलता है। उसकी गाथा 75। का मूल विषय है कि पुण्य में तृष्णा रूपी बीज जो पुण्य का फल है, तो पुण्य के फल में जीव को मिलता है स्वर्ग। पुण्य के फल में मिलता है गति। तो जो स्वर्ग मिला, देव गति मिली, वो पांचों इंद्रिय के विषयों के
भोगवटा के लिए बाह्य पूर्ण साधन है। तो पुण्य का फल में जीव के परिणाम में पांचों इंद्रिय के विषयों को भोगवटा करने की तृष्णा उत्पन्न होती है। वो तृष्णा का फल दुख है। उसके कारण दुख रूपी वृक्ष वो फूलता है, फलता है। ये बात 75वीं गाथा में समझाना है। देखो उसकी टीका। રાજુ હા હા એટલે 75 નો અન્વયાર્થ થઈ ગયો છે। હા એટલે ટીકા આવે। વળી જેમને તૃષ્ણા ઉદિત છે, ઉદિત છે એટલે પ્રગટ છે। જેમને તૃષ્ણા પ્રગટ છે એવા તે દેવ પર્યાય સમસ્ત સંસારીઓ નો અર્થ છે સમસ્ત મિથ્યા દ્રષ્ટિ અજ્ઞાનીઓ। સમસ્ત મિથ્યા દ્રષ્ટિ अज्ञानियों तृष्णा रूपी दुख का बीज तृष्णा रूपी दुख। तृष्णा शू छे? तृष्णा इच्छा छे। इच्छा शू छे? तो पर पदार्थ ने मेळवू, पर पदार्थ ने भोगवू, पर पदार्थ નું કાર્ય કરવું, એવી ઈચ્છા। તો પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો દેવલોકમાં ઘણા છે। એ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો એનો ભોગવટાનો ભાવ, એનો ભોગવટાનો ભાવ, એની तीव्र लालसा, तीव्र इच्छा। પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયો ભોગવી શકતા નથી। હેલો, પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયો કર્યો એક સાથે ભોગવી શકતા નથી। હા કર્યો। અજીતભાઈ પ્લીઝ તમારો માઇક મ્યુટ કર, અનમ્યુટ કરો। તો પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો એક સાથે ભોગવટો કરી શકતા નથી દેવગતિમાં। ભોગવટાની ઈચ્છા પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોની છે। તો જે પાંચેન્દ્રિયના વિષયોને ભોગવટાની ઈચ્છા છે, તૃષ્ણા છે, એ ખરેખર અગ્નિ છે। અગ્નિ એ જીવના અતિન્દ્રિય સુખ શાંતિને બાળનાર છે। હવે ઈચ્છાની ઉત્પત્તિ થવી, તૃષ્ણાની ઉત્પત્તિ થવી, તે જ દુઃખરૂપ છે। એ અજ્ઞાની સમજતો નથી, મિથ્યા દ્રષ્ટિ સમજતો નથી। એટલે કરે છે શું? હાજી, તમે કેમ કહો છો કે પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષય એકી સાથે એમ કેમ કહો છો? કારણ કે એક પછી એક જ ભોગીએ છે ને।
આ એક પછી એક ભોગવે છે, પણ ઈચ્છા તો કેવી છે, બધું ભોગવી લઉં. અચ્છા. પણ એક સાથે બધું ભોગવી નહીં શકે. હાજી. એટલે આપણે ટીવી જોતા હોઈએ તો આપણને એમ લાગે કે હું સાંભળું પણ છું અને જોઉં પણ છું. બંને ક્રિયા એક સાથે થતી નથી, પણ ઉપયોગ એટલો ઝડપથી ફરે છે વારંવાર કે તમને એમ લાગે કે બંને પ્રક્રિયા એક સાથે થાય છે. ખરેખર જોવામાં ઉપયોગ છે ત્યારે સાંભળવામાં નથી, સાંભળવામાં છે ત્યારે જોવામાં નથી. હવે પાંચેન્દ્રિયના વિષયો છે તો અનેક દેવલોકમાં. અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિને એમ છે કે હું બધું એકી સાથે ભોગવી લઉં, પણ એક સાથે ભોગવી શકતો નથી, એની એક આકુરતા છે. બીજું, ઈચ્છા અને તૃષ્ણા ઉત્પન્ન થવી એ જ સ્વયં આકુરતા સ્વરૂપ છે. હવે અજ્ઞાનીને એ ખ્યાલ નથી કે ઈચ્છા કે તૃષ્ણા ઉત્પન્ન થાય એ જ દુઃખનું કારણ છે. એટલે શું કરે છે કે જે વિષયોની તીવ્ર ઈચ્છા થઈ એનો ભોગવટો કરવામાં રોકાય છે. પણ જે વિષયો ભોગવા ન ભોગવા ત્યાં ફરી પાછી બીજી ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન થઈ. શ્રીખંડ એક ચમચી ખાધો, ઈચ્છા થઈ શ્રીખંડ ખાવ. ઈચ્છા થઈ શ્રીખંડ ખાધો, તો મોઢું ગળ્યું થઈ ગયું એટલે તરત જ સમોસા ઉપર નજર ગઈ, ફરસાણ ઉપર નજર ગઈ. એટલે ફરસાણ થોડું ખાધું. ફરી પાછું એ સ્વાદને છોડીને થાળીમાંથી ત્રીજી વસ્તુનો સ્વાદ લેશે. જો તને શ્રીખંડની ઈચ્છા થઈ હતી ને શ્રીખંડ સુખદાયક લાગ્યો તો શ્રીખંડ જ ખા ને, બીજું ખાવાની ક્યાં જરૂર? જે વિષય ભોગવવા જેવો લાગે છે એ ભોગવતાની સાથે તરત જ એને એમ થાય છે કે આની બદલે બીજું ભોગવું. એક ઈચ્છા છોડી બીજી ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરી. એવું દરેક સમયે નવી ઈચ્છા, નવી ઈચ્છા, નવી ઈચ્છા, નવી ઈચ્છા. એમાં રચ્યો પચ્યો. પણ ક્યારેય વિચાર એમ નથી કર્યો કે હું ઈચ્છા કરું છું, ભોગવટા માટે જાઉં છું ને ભોગવટા માટે લાંબો સમય ટકી શકતો નથી, ફરી પાછી નવી ઈચ્છા કરું છું. આ ઈચ્છા કરવાનું ફળ શું? એના પર એને ક્યારેય વિચાર નથી કર્યો. નવી ઈચ્છા, નવા વિષયો મેળવવાની તૃષ્ણા, નવા વિષયોને મેળવવાની આકુરતા, એવા દુઃખમાં શેકાયેલો રહે છે.
તો કે સાચો ઉપાય શું છે? ઈચ્છા થઈ, જેની ઈચ્છા થઈ વિષય ભોગવી લેવાય એનું સોલ્યુશન છે કે ઈચ્છાને ઉત્પન્ન જ ન થવા દેવી એનું સોલ્યુશન છે. પરનું લક્ષ કરતા પરના ભોગવટાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરી એ આકુળતાનું કારણ. તો એનો અર્થ એમ થયો કે સ્વસ્વભાવનું લક્ષ કરતા નિરાકુળતા પ્રગટ થવી જોઈએ. તો પુણ્યના ફળમાં જે બાહ્ય વિષયો મળ્યા અને એનું લક્ષ્ય કર્યું તો તૃષ્ણા ઉત્પન્ન થઈ, આકુળતા ઉત્પન્ન થઈ, ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ. એ ભાવમાં તારી આધ્યાત્મિક સુખ શાંતિ નાશ થઈ ગઈ. તો આચાર્ય ભગવંત એ બતાવવા માંગે છે કે ઈચ્છાની ઉત્પત્તિ દુઃખનું કારણ. પુણ્યના ફળમાં મળેલા બાહ્ય સંયોગો અને એને ભોગવટાની તૃષ્ણા, તો પુણ્યના ફળમાં જે મળ્યું એ તો ખરેખર તને દુઃખનું કારણ થયું, સાચા સુખનું કારણ ન થયું. क्या कहा फिर से हिंदी में? जीव को पुण्य अच्छा लगता है, पाप बुरा लगता है. इसलिए अनादिकाल से जीव कभी भी पाप को छोड़ नहीं सका, सॉरी पुण्य को छोड़ नहीं सका. तो आचार्य भगवंत यहाँ सिद्ध करना चाहते हैं कि पुण्य के फल में जो बाह्य परिग्रह मिला वो बाह्य परिग्रह संयोग में आने से तेरे में बाह्य पदार्थ के भोगवटा की भावना उत्पन्न हुई, भोगवटा की इच्छा उत्पन्न हुई, भोगवटा की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई, तृष्णा उत्पन्न हुई. और तेरी इच्छा अनुसार बाह्य पदार्थ भोगवटा का मिला, फिर भी वहां तू टिक तो नहीं पाता है. उसका भोगवटा कुछ समय के लिए किया, उससे थक गया, फिर दूसरी इच्छा की. श्रीखंड खाने से थक गया तो फरसाण को पकड़ा, उससे थक गया तो पूरी सब्जी खाया, उससे थक गया दाल चावल खाए, जरा ठीक नहीं लगा तो चटनी खाई. तो तेरी इच्छा तो एक का भोगवटा किया नहीं किया, दूसरे के भोगवटा की इच्छा उत्पन्न कर दी, दूसरा का भोगवटा किया नहीं किया तब तीसरे की इच्छा उत्पन्न कर दी. ये जो इच्छा है, इच्छा अनुसार बाह्य पदार्थ का भोगवटा कर लेना,
वो सुख का कारण है कि दुख का कारण है? नंबर एक। दूसरा, सुख का कारण पर पदार्थ का भोगवटा है कि इच्छा की उत्पत्ति न हो वो सुख का कारण है? तो कि इच्छा की उत्पत्ति न हो वो सुख का कारण है। लेकिन जब तक तू पर पदार्थ को विषय बनाता रहेगा, पर पदार्थ के विषय में जुड़ता रहेगा, तब तक तो तेरी इच्छा की निवृत्ति होती नहीं, इच्छा का नाश होता नहीं। तो बाह्य में पुण्य के फल में तुझे मिले हुए पदार्थ सुखदायक लगता है, वो वास्तव में तो दुखदायक है। तुझे भोगवटा का भाव उत्पन्न होता है, उससे तू सुखी होगा, ऐसा तू मानता भी है और ऐसा तेरा अज्ञान भी है। लेकिन भोगवटा करने के बाद भी तू सुखी तो हुआ नहीं। ऐसा दिखाकर, पर का लक्ष्य छुड़ाकर, पुण्य की महिमा छुड़ाकर, पुण्य के फल में मिले हुए परिग्रह उस पर जो दृष्टि चली जाती है, वहां उपयोग चला जाता है, उसको आचार्य भगवान छुड़वाकर तेरी दृष्टि और उपयोग न्याय की ओर ले जाना चाहते हैं। ज्ञायक स्वभाव से इच्छा रहित है, ज्ञायक स्वभाव से तृष्णा रहित है, ज्ञायक स्वभाव से पुण्य पाप से रहित है, ज्ञायक स्वभाव से पुण्य पाप के फल से रहित है, ज्ञायक पर पदार्थ के भोगवटा का भाव से रहित है। उस पर दृष्टि जाने से, उस पर उपयोग जाने से इच्छा रहित हो जाएगा। उस पर दृष्टि और उपयोग जाने से तेरे परिणाम में शुद्धता प्रकट होगी, शुभ भाव प्रकट नहीं होगा। शुद्धता प्रकट हुई तो उसका फल अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। ख्याल में आता है? तो देखो टीका में क्या कहा कि पुण्य जनित तृष्णा के द्वारा, पुण्य जनित, पुण्य में से उत्पन्न हुई तृष्णा, उसके द्वारा अत्यंत दुखी वर्तता थका। पुण्य जनित तृष्णा है, उससे तो तू आकुल व्याकुल हो गया। अब आगे, मृग तृष्णा में से जल की माफक मृग तृष्णा किसको कहते हैं? तो कि कहीं सरोवर हो पानी का, ऊपर सूर्य प्रकाश गिरता हो, तो पानी और सूर्य प्रकाश के
निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण तुझे दूर में ऐसा लगेगा कि रोड पर पानी पड़ा है। वहां जाके देखो तो वहां पानी नहीं है, वो पानी का आभास था। पानी मिले तो तू संतुष्ट हो जा, तृप्त हो जा। लेकिन मृग तृष्णा, वो तो जल भी नहीं, जल का आभास है, उससे तुझे सुख शांति नहीं मिल सकती। उसी प्रकार पर पदार्थ, उसके विषयों के भोगवटे में तुझे सुख लगता है। वहां सुख है नहीं, सुख का आभास है। सुख तो पर पदार्थ, अचेतन जड़ पदार्थ का स्वभाव ही नहीं। पांच इंद्रिय के विषय लो, स्पर्शेंद्री, रसेंद्री, घ्राणेन्द्री, चक्षु इंद्री, श्रोतेंद्री। पांचों इंद्रिय पुद्गल है, अचेतन है, जड़ है, अजीव है, पर पदार्थ है। उसमें सुख नाम का गुण नहीं। सुख नाम का गुण नहीं तो सुख रूप परिणमन भी नहीं। तो पांच इंद्रियों और उसके विषय, उसमें सुख स्वभाव नहीं। सुख स्वभाव नहीं तो सुख रूप परिणमन भी नहीं। तो उसमें से सुख तुझे कैसे मिल सकता है? जो आकुलता तुझे उत्पन्न हुई तृष्णा के कारण, वो आकुलता भी पांच इंद्रिय के विषयों में से नहीं आई। तृष्णा की जो आकुलता उत्पन्न हुई, वो आकुलता सुख गुण का विपरीत परिणाम है। और सुख गुण तो आत्मा का गुण है। तो आत्मा का सुख गुण, उसका विपरीत परिणाम वो आकुलता है। आकुलता की उत्पत्ति हुई वो भी तेरे आत्मा में से हुई है। अगर आकुलता तेरे आत्मा में से उत्पन्न होती है तो निराकुलता भी तेरे आत्म स्वभाव में से प्रकट होनी चाहिए। ख्याल में आता है? क्या कहा? विषयों में से सुखों की इच्छा और वो दुख संताप का वेग को सहन नहीं कर सकता। कि बाहर का विषयों का भोगवटा तू कब तक करेगा? अनादि से तो किया, अनादि से किया, लेकिन सुख की प्राप्ति तो हुई नहीं। तेरा मरण आ जाए तब तक तू विषय में जुड़ता रहा। क्या लिखा? मरण पामे ત્યાં સુધી। पहले दृष्टांत दिया था ना कि भमरा फूल को चूसने के लिए जाता है, फूल का रस, ऐसा उसमें तन्मय हो जाता है
ये फूल आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाए और भमरा अंदर रह जाए, मर जाता है। मरण तक वो मरण का कारण बना पर पदार्थ का भोगोटा। इतनी एकता बुद्धि, इतनी तन्मयता, इतनी रस की लोलुपता, इतनी तृष्णा, इतनी आकुलता, उसमें सुख माना, देह छोड़ दिया, मर गया। वो तृष्णा का कारण। स्पर्शेंद्री, रसेंद्री, घ्राणेंद्री, चक्षुइंद्री, सोतेंद्री, उसके विषयों की तल्लीनता। मौत आ जाए तो भी जागृत नहीं होता। एक तो पर पदार्थ का भोगोटा कर नहीं सकता, फिर भी अज्ञान के कारण उसमें एकत्व करता है। भोगोटा करने के लिए गया तो दुखी हुआ, फिर भी भोगोटा की एकत्वता वो छोड़ता नहीं है। फल दुख मिला, फल 4 गति मिली, फल 84 लाख योनि में जन्म हुआ। एक बार दृष्टांत बताया था कि गुरुदेव ने क्या कहा। कोई मुमुक्षु ने चौपाटी पर फ्लैट लिया, तो अंदर से भावना होती है कि गुरुदेव हमारे फ्लैट पर पगला करे। गुरुदेव को विनंती की, गुरुदेव वहां पधारे। फ्लैट में से, बालकनी में से बताया कि देखो यहाँ सामने दरिया है, समुद्र है, वहां से ठंडी लहर आती है। बालकनी में बैठे तो मजा आ जाती है। वेस्ट ओपन है, 10वां 12वां माला पे रहे फ्लैट है। ये सुनकर गुरुदेव ने बोला, इस समुद्र का पानी देखकर समुद्र में जन्म करने वाला है। शीतल हवा स्पर्शेंद्री का विषय है, उसका भोगोटा में तन्मय हुआ। समुद्र के पानी, भरती ओट, वो कुदरती सौंदर्य देखने में एकमेक हो गया। ठंडी पवन की लहर और समुद्र का पानी, भरती ओट, उस पर दृष्टि रही, वहां सुख लगा। विनायक को भूल गया दृष्टि में लेना। और जैसा भाव किया कि ठंडी लहर में ठीक पना लगा, तो भाव अनुसार अगले भाव में जन्म भी होगा समुद्र में। लेकिन जीव को मालूम नहीं है कि ये भाव का फल क्या है।
गुरुदेव हमारे जो अटक का स्थान है वो दिखाते हैं। देखो गुरुदेव पहले कहते हैं कि देखो बेंगलोर में जिन मंदिर बना 12 लाख का, 6 लाख ये भभूतमल जी ने दिया। तो गुरुदेव ये सब बात इतनी अच्छी तरह बोलते हैं, देने वाला भी वहां एकाग्र हो जाता है। ये गुरुदेव ने इतनी अच्छी तरह बताया और दूसरी सेकंड पर गुरुदेव ने बोला कि मंदिर बनाने का भाव शुभ भाव है, उससे धर्म माने तो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, संसार में घूमने वाला है। देखो वो जीव रुक गया शुभ भाव में। मंदिर बनाने के भाव शुभ भाव है, वो शुभ भाव को लाभ का कारण मानकर बैठ गया। तो क्या दान न करे? पर दान करना तो गुरुदेव ने कहा कौन दान करे? धन धन के कारण आता है, धन धन के कारण जाता है, वो तो परद्रव्य है। तो क्या दान करने का भाव न करे? अरे पूर्व पुण्य के कारण तुझे कदाच संपत्ति मिल गई, वो शासन की प्रभावना के लिए खर्च किया तो उससे अगर तूने धर्म मान लिया तो तू मिथ्या दृष्टि है। ऐसा स्वभाव तो आएगा, लेकिन स्वभाव से संतुष्ट हो जाना, स्वभाव में धर्म मान लेना, वो अभिप्राय की विपरीतता है, ये तो अज्ञान है, वो अनंत संसार का कारण बनेगा। स्वभाव आया उसकी ना नहीं, स्वभाव हुआ उसकी ना नहीं। स्वभाव के कारण लोभ का त्याग किया, परिग्रह का त्याग किया, धन का त्याग किया, उसके लिए भी ना नहीं बोला। लेकिन धन का त्याग मैं कर सकता हूं तो परद्रव्य को मैं ग्रहण और त्याग कर सकता हूं, यह अभिप्राय तो मिथ्यात्व है। ये अभिप्राय छोड़, दान करना था कर दिया। वो चीज परद्रव्य थी, उसका परिणमन जो होने वाला था हुआ। मैंने जो शुभ भाव किया वो धर्म नहीं, वो तेरी परिणति में रहना चाहिए। पर्याय और परिणति में क्या अंतर है? पर्याय और परिणति में क्या अंतर है? तो के देखो, समझ लो कि पहले समय पर हमने क्रोध किया, दूसरे समय हमने राग किया, तीसरे समय मान किया, चौथे समय माया किया, पांचवें समय हास्य किया,
छठे समय रति किया, अरति किया, तो जो क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति ऐसे जो भाव उत्पन्न हुए वो पर्याय है। वो पर्याय है। तो परिणति किसको कहे? तो कि क्रोध मैंने किया, मैं अज्ञानी हूं, मैंने क्रोध किया, उस समय भी मैं मनुष्य हूं, ये भाव में से छूटा नहीं। राग किया तो भी मैं मनुष्य हूं, ये भाव में से छूटा नहीं। मान किया तो भी मैं मनुष्य हूं, वो भाव में से छूटा नहीं। माया की तो भी मैं मनुष्य हूं, ये भाव में से छूटा नहीं। तो मैं मनुष्य हूं, मनुष्य हूं, मनुष्य हूं, वो भाव व्यक्त या अव्यक्त कंटिन्यूअसली वर्तता है, उसको परिणति कहते। ये अज्ञानी की बात हुई। अज्ञानी, गुरुदेव है ज्ञानी। सुबह में उठकर चिंतन किया सविकल दशा में, तो भी चिंतन का भाव शुभ भाव है, फिर भी मैं ज्ञायक हूं, ये भाव छूटा नहीं। उसके बाद सुबह में दूध लिया, तो दूध लेने समय भी मैं ज्ञायक हूं, दूध से भिन्न हूं, ये भाव छूटा नहीं। भगवान के दर्शन के लिए गए, तो भगवान के दर्शन का शुभ भाव है, तभी भी ये शुभ भाव से मैं भिन्न ज्ञायक हूं, वो व्यक्त या अव्यक्त भाव में से छूटा नहीं। भगवान की पूजा की तो भी भाव में से छूटा नहीं, मैं ज्ञायक हूं। स्वाध्याय में आए, स्वाध्याय शुरू करने से पहले शास्त्र का में जो विषय चलता है उस पर दृष्टि गई, पढ़ा, है सविकल दशा, शास्त्र का अवलंबन है, फिर भी उस परिणाम के समय में ज्ञायक हूं, ये भाव छूटा नहीं। स्वाध्याय दिया 1 घंटा, भाषा वर्गना छूटती है, वो ज्ञायक से पर है, वो परद्रव्य है, मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं, मैं ज्ञायक हूं, ये भाव छूटा नहीं। तो ज्ञानी की परिणति में कंटिन्यूअसली मैं ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं। निर्विकल्प दशा है तो भी मैं ज्ञायक, सविकल्प दशा है तो भी ज्ञायक। वो भाव में से दृष्टि खिसकती नहीं, उसको परिणति कहते। ख्याल में आता है?
फिर से गुजराती में। પરિણામ અને પરિણતિમાં શું અંતર છે? માતા બાળકને મૂકીને બજારમાં ખરીદી માટે ગઈ. તો બહારમાં ચાલીને જવાની ક્રિયા પણ છે, શાકભાજીના ભાવ પણ પૂછે છે, શાકભાજી લે પણ છે, પૈસા પણ ચૂકવે છે. એવી બાહ્ય ક્રિયા જોવા મળતી હોવા છતાં અંતરંગમાં ખેંચાણ છે કે મારું બાળક ઉઠી નહીં ગયું હોય ને તો બાળકનું ચિંતન, બાળકને ઘરે મૂકીને આવી છું એનું ચિંતન જે સાતત્ય રૂપે એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ રહ્યું એ પરિણતિ છે. પહેલા સમયે મોહ કર્યો, બીજા સમયે રાગ કર્યો, ત્રીજા સમયે દ્વેષ કર્યો, ચોથા સમયે ક્રોધ કર્યો, પછી માન કર્યું, માયા કરી, લોભ કરી. તો કે એ બધા અજ્ઞાનીના પર્યાયો છે, પરિણામ છે. પણ અજ્ઞાની મોહ, રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ રૂપે જ્યારે પરિણમે છે ત્યારે પણ એના ભાવમાંથી હું મનુષ્ય છું, હું મનુષ્ય છું, હું મનુષ્ય છું, હું પુરુષ છું, હું પુરુષ છું, હું સ્ત્રી છું, હું સ્ત્રી છું, એ ભાવ છૂટતો નથી. એને પરિણતિ કહેવાય. એ અજ્ઞાનીની પરિણતિ છે. અજ્ઞાની કુંદાચાર્યદેવ હોય, ગુરુદેવ હોય, માતાજી હોય, ગુરુદેવ સવારે ઉઠીને પોતાના રૂમમાં એકાંતમાં દિનચર્યામાં ચિંતન આદિ કરે. ચિંતન સવિકલ દશા છે. એ સવિકલ દશાના કાળે અનેક પ્રકારના ચિંતનમાં ભાવ આવ્યા. એક એક ભાવ પર્યાય છે. પણ એ ચિંતનના કાળે એ ચિંતનનો શુભ ભાવ એનાથી ભિન્ન હું જ્ઞાયક છું, હું જ્ઞાયક છું, હું જ્ઞાયક છું, ત્યાંથી દ્રષ્ટિ ખસતી નથી, ત્યાંથી હું પણ ખસતું નથી. એ પરિણતિ છે. દૂધ લેવાનો ટાઈમ થયો, ગુરુદેવે દૂધ પીધું. દૂધ પીતા સમયે સંયમના હેતુ માટે દૂધ પીધું. પણ એ દૂધ પીતા સમયે જ્ઞાયક દૂધથી ભિન્ન છે.
જ્ઞાયક દૂધ પી શકતો નથી. હું દૂધ સ્વરૂપે નથી, શરીર સ્વરૂપે નથી, ખાવા પીવાની ક્રિયા રૂપે નથી. હું તો જ્ઞાયક છું. એ હું જ્ઞાયક છું, જ્ઞાયક છું, જ્ઞાયક છું એવું ભાવમાંથી છૂટતું નથી. એ પરિણતિ છે. अज्ञानी को तो क्या है, इच्छा रूपी तृष्णा. वो दुख का मूल, दुख का अंकुर है. पहले बताया था ने, जड़ो प्राणी છે. શું પીવે? लोही पीवे, खून. खून पीता है. जो खून बिगड़ चुका है उसको पीता है. और उसमें सुख मानता है. ऐसी स्थिति किसकी है? ऐसी स्थिति हमारे अज्ञानियों की है. तो आगे बताया कि पुण्यशाली भी पापशाली के माफिक. पुण्यशाली પાપશાળીની માફક. તૃષ્ણા જેનું બીજ છે. એવા વિજય પામતા, વિજય એટલે ફળ, એવા ફળ પામતા દુઃખ અંકુર વડે ક્રમશઃ એટલે એક પછી એક આક્રાંત થતા હોવાથી વિશ્વને ઈચ્છતા તેમને જ ભોગવવા થકા વિનાશ પર્યંત એટલે મરણ પામતા સુધી ક્લેશ પામે છે, એટલે દુઃખ પામે છે. શું કહ્યું? ऐसा दुख जन्म से मरण तक विषयों की इच्छा में, भोगोटा की इच्छा में मरण तक दुखी दुखी हो गया, फिर भी इच्छा का त्याग नहीं किया, फिर भी ज्ञायक के सन्मुख नहीं हुआ, फिर भी मेरे परिणाम में उत्पन्न होती आकुलता का नाश कैसे हुए उसका मार्ग नहीं ढूंढा. इसलिए वो क्लेश पाता है, यानी आकुलता पाता है. आथी पुण्यो सुखाभास एवा दुखना साधन है. पुण्य को क्या बताया? सुखाभास, सुख का आभास,
सुख नहीं है, तुझे सुख जैसा लगता है। लगता है सुखाभास। अब आगे भावार्थ। जिसको समस्त विकल्प जाल रहित परम समाधि से उत्पन्न सुखामृत रूप सर्व आत्म प्रदेश से परम आह्लादभूत स्वरूप तृप्ति वर्तती है, ऐसे समस्त संसारी जीवों को निरंतर विषय तृष्णा व्यक्त या अव्यक्तपने वर्तती है। क्या कहा? जिसको, वहां से शुरू किया, जिसको का अर्थ है मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को समस्त विकल्प जा रहा। प्रत्येक समय जो नया नया भाव उत्पन्न होता है उसको विकल्प कहा, उसको सविकल्प दशा कही। तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को जो समस्त प्रकार के विकल्प उससे रहित परम समाधि से उत्पन्न सुखामृत रूप परम समाधि किसको कहा कि सब विकल्प छोड़कर निर्विकल्प हो जा। विकल्प दुख का कारण है, तो विकल्प रहित जो परम समाधि है तो उसके कारण तो सुख रूपी अमृत आत्मा के सर्व प्रदेश से उत्पन्न होता है, और आत्मा के सर्व प्रदेश से सुख रूपी अमृत प्रकट हुआ तो उसका परम आह्लाद, अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान का आह्लाद आह्लाद कब बोला जाता है? जब जीव तृप्त हो जाता है। लोग बोलते हैं ना आज तो मजा आ गई। लेकिन अध्यात्म में मजा कब आती है? तो के सुख रूपी अमृत रूप परिणाम सुख गुण के आत्मा के सर्व प्रदेश से उत्पन्न हो जाए, तब जीव तृप्त हो जाता है, सब प्रकार की इच्छा विलीन हो जाती है। लेकिन जिसको सुख रूपी अमृत आत्मा के सर्व प्रदेश से प्रकट नहीं हुआ है, ऐसे संसारी जीव निरंतर विषय तृष्णा व्यक्त या अव्यक्तपने वर्तती है। सिंपल इतना बताया
कि जहां जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती तब तक तुझे आकुलता होती है, क्योंकि तब तक विषय तृष्णा है और विषय तृष्णा दुख का कारण है, आकुलता का कारण है। ऐसी जो तृष्णा रूपी बीज क्रमशः अंकुर रूप होकर दुख वृक्ष रूप वृद्धि पाती है, कि जो तृष्णा है उसकी वृद्धि हो गई तो अंकुर में से, बीज में से अंकुर हुआ, अंकुर में से वृक्ष हुआ तो दुख रूपी वृक्ष हुआ। ये दुख का असह्य वेग यानी दुख का जोर असह्य हो जाने से विषय के भोगवट से सुख मिलेगा ऐसा मानकर वो जीव विषयों में प्रवृत्त हो जाता है। देखो, तो विषय के भोगवट में चला गया, विषय का भोगवटा छोड़ने के बदले में विषय के भोगवट में चला गया। इसलिए जिसको विषयों में प्रवृत्ति दिखने में आती है, इससे देव तक समस्त संसारी दुखी ही है। तो यहाँ ऐसा सिद्ध किया कि सब संसारी जीव इच्छा के कारण दुखी है। समय हो गया है, 1-2 मिनट ज्यादा हुई। कौन जय बुलावे छे? थैंक यू वेरी मच રાજુ ભાઈ, થેન્ક યુ। बहुत सुंदर રાજુ भाई। હું બોલાવું? हाँ बोलाओ। हाँ। परम कृपाळु परम उपकारी परम पूज्य सद्गुरु देवनो जय हो। जय हो। पूज्य भगवती मातनो जय हो। रानी मातनो जय हो। जय हो। सुवर्णपुरी धामनो जय हो। 108 बार सूर्यकीर्ति भगवान जय माता जी नु ज्ञान बोले सूर्यकीर्ति भगवान नो जय जयकार गंधर्व भगवान नो जय हो। कुंकुंद आचार्य जिनेन्द्र देव नो जय हो। अमृतचंद्र आचार्य नो जय हो। बाहुबली भगवान नो जय हो। विराजमान साक्षात खन्नाथ सर्व जिनेन्द्र देव भगवंतों नो जय हो। थैंक यू वेरी मच રાજુ ભાઈ, બધાને જય જિનેન્દ્ર। थैंक यू। थैंक यू। जय जिनेन्द्र રાજુ ભાઈ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। તમને ઠીક છે? જય જિનેન્દ્ર રાજુ ભાઈ। હા બરાબર છે। ચેકઅપ ફાઇન થઈ ગયું? હા સરસ થઈ ગયું। ઓકે રાજુ ભાઈ, ટેક કેર, થેન્ક યુ। ઓકે।